خلیجی ممالک کی امریکن صدر سے مایوسی بڑھنے لگی، ایران سے متعلق ٹرمپ کی پالیسی پر شدید عدم اطمینان کا اظہار۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت اور بحرین ٹرمپ کی متضاد پالیسیوں سے ناراض ہیں۔ بعض ممالک امریکی فوجی اڈوں کی میزبانی جاری رکھنے کے جواز پر بھی سوال اٹھانے لگے ہیں۔ خلیجی حکام نے کہا ہے کہ ٹرمپ نے ایران کے خلاف کارروائی کی دھمکیاں کئی مرتبہ دیں، پھر مذاکرات میں پیش رفت کا حوالہ دے کر انہیں واپس لیا، جس سے ان کی پالیسی کو غیر مستقل اور غیر متوقع سمجھا جا رہا ہے۔ ایرانی آرمی چیف نے امریکی فوجیوں کے سر کی قیمت مقرر کر دی۔ امریکی جارحے کو ہلاک یا گرفتار کرنے والے کو $30,000 انعام دیا جائے گا۔ میجر جنرل امیر حاتمی نے کہا کہ ایران سے جنگ نے امریکی فوجی برتری کا دعویٰ خاک میں ملا دیا۔ امریکہ کو خلیج فارس، بحیرہ عمان اور ابن ہرمز سے نکلنا ہوگا۔ ہر اس شخص کو کچل دیں گے جو ابن ہرمز کے قریب آنے کی کوشش کرے گا۔ ایرانی مسلح افواج کے جنرل اسٹاف کا کہنا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل کی مکمل شکست تک پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ دشمن کے ہتھیار ڈالنے تک ایران اپنے جائز حقوق کی جدوجہد جاری رکھے گا۔ ایران جنگ کے عسکری اور سیاسی محاذوں پر فاتح بن کر ابھرا۔ ہم اس وقت امریکہ اور صہیونیوں کی مسلط کردہ غیر منصفانہ جنگ میں ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالیباف نے کہا کہ ایرانی قوم اس غیر منصفانہ جنگ کا بہادری اور باوقار انداز سے مقابلہ کر رہی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ دشمن کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے، باعزت معاہدہ کیا۔ امریکہ سے معاہدہ قومی وقار اور رہبر معظم کے اصولوں کے تحت طے پایا۔ حوثی ملیشیا کے حملوں کے بعد یمن کے المخا بندرگاہ پر آپریشنز معطل۔ ڈائریکٹر بندرگاہ نے بتایا کہ المخا بندرگاہ میں حالیہ حملوں کے بعد تجارتی اور بحری سرگرمیاں معطل کر دی گئی ہیں۔ بندرگاہ کو 25 سے زائد میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ حملوں میں 7 افراد ہلاک اور تقریباً $16 ملین کا نقصان ہوا۔ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم کون؟ مری میں مسلم لیگ نون کا پارٹی صدر میاں نواز شریف کی زیر سربراہی مشاورتی اجلاس۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی نامزدگی کا فیصلہ ہو گیا۔ خواتین اور اوورسیز کی مخصوص سیٹوں پر بھی فیصلہ۔ 10 خواتین کے انٹرویوز کیے گئے۔ اوورسیز سیٹ کے لیے نون لیگ برطانیہ چیپٹر کے صدر عبد الرحمان آرائی مضبوط امیدوار۔ ڈی سی مری نے آئندہ کے لائحہ عمل سے آگاہ کیا۔ نامزدگیوں کا اعلان کل میاں نواز شریف خود کریں گے۔ زرداری ہاؤس میں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے حوالے سے اہم بیٹھک۔ کشمیر امور کی انچارج فریال تالپور کی زیر صدارت آزاد کشمیر میں آئندہ سیاسی حکمت عملی پر اہم مشاورت۔ اپوزیشن میں بیٹھنے سے متعلق اہم فیصلہ بھی متوقع۔ سیکرٹری اطلاعات پیپلز پارٹی ندیم افضل چند نے دعویٰ کیا ہے کہ آزاد کشمیر میں اپنی مرضی کے نتائج تیار کیے گئے ہیں۔ پہلے پنجاب میں بھی نتائج تیار ہوئے۔ شریف خاندان کا 40 سالہ اقتدار ہے، موازنہ کر لیں کس نے زیادہ ادارے بیچے۔ آزاد کشمیر میں مخصوص سیٹوں پر انتخابات کا شیڈیول۔ قانون ساز اسمبلی کی 8 مخصوص سیٹوں پر انتخابات 24 اگست کو ہوں گے۔ خواتین کی 5 سیٹیں بھی شامل۔ کاغذات نامزدگی 20 اگست کو صبح 9 بجے سے دوپہر 2 بجے تک جمع کروائے جائیں گے۔ امیدواروں کی حتمی فہرست 23 اگست کو جاری ہوگی۔ ملک میں نئے صوبے وقت کی ضرورت قرار۔ ایم کیو ایم پاکستان کا قومی ڈائیلاگ شروع کرنے کا اعلان۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ نئے صوبے ایم کیو ایم کا مطالبہ نہیں، آئین کا تقاضا ہے۔ آبادی بڑھنے کے باوجود ملک میں نئے صوبے نہیں بنائے گئے۔ چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کا سپریم کورٹ سے دوبارہ رجوع کرنے کا اعلان۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ موجودہ نظام لوگوں کو مجبور بنا رہا ہے، سب مان گئے مگر پیپلز پارٹی نے لوکل باڈی امینڈمنٹ کی مخالفت کی۔ فاروق ستار کا کہنا تھا کہ پاکستان کی بقا اور سالمیت اب مزید انتظامی یونٹس کے قیام کے بغیر ناممکن ہے۔ یہ سندھ کی بیٹیوں اور بھائیوں کے حقوق کی بحالی کی تحریک ہے۔ خالد مقبول کی پریس کانفرنس سے واضح ہے کہ وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کا جوابی وار کہا، متحدہ کی خود ساختہ قیادت جب بھی پریس کانفرنس کرتی ہے شدید ناراض اور فرسٹریٹڈ نظر آتی ہے۔ سندھ تقسیم نہیں ہوگا لیکن متحدہ کو تقسیم ہوتا ہوا ضرور دیکھ رہا ہوں۔
तर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का MKM की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी आइन का आधा सच बोलकर अवाम को गुमराह करने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। गली मोहल्लों में नफरत फैलाकर मुल्क को तकसीम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। क्या मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए? STPI के ज़ेर-ए-तमाम कौमी सतह पर मुबाहिसा, मुमताज़ मुकर्रीरीन और माहिरीन की शिरकत का कहना था कि बेहतर गवर्नेंस के लिए नए इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए। इंतजामी यूनिट्स बनने से अवाम को फ़ायदा होगा, इख्तियारात की निचली सतह तक तकसीम लाज़मी है। मुकर्रीरीन ने कहा कि मजबूत बल्दियाती निज़ाम से अवामी मसाइल हल होंगे। महंगाई और बिजली बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्की एहतजाज, चारों सूबों में एहतजाजी धरने। कराची, लाहौर, पेशावर में एहतजाजी मार्च। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, पेट्रोलियम लेवी आवाम से भत्ता वसूली के मुतरादिफ है। मुल्क में सालाना 17 अरब डॉलर्स की मराद मखसूस तबके को दी जाती हैं। गरीब पर टैक्सों की भरमार है। मुजाहिरों के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। वज़ीर आला हाउस और गवर्नर हाउस जाने वाले रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए गए। कराची में गवर्नर हाउस, लाहौर में चेरिंग क्रॉस और पेशावर में शेर शाह सूरी रोड पर धरना जारी। गुड ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। गुड ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत को अपने मुतालबात से आगाह किया। ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर मलिक शहजादाबाद ने कहा कि डीजल और पेट्रोल की कीमतों की रोजाना तब्दीली पर हमसे 15 दिन का वक्त लिया है। विद होल्डिंग टैक्स का मसला भी हल होगा। टोल टैक्स में भी कमी के हवाले से कमेटी बना दी गई है। मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया है कि 40 दिन के लिए हड़ताल मौखर कर रहे हैं। फरहान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 7 दहशतगर्दों को मार गिराया, मुतादिद जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक लज्जे में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की गई। दहशतगर्दों के ठिकानों से जदीद असलहा, भारी मिक़दार में गोला बारूद, जंगी सामान, 2 गाड़ियाँ और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। दहशतगर्दों के ठिकाने भी तबाह। सिक्योरिटी फोर्सेस का आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने का अज़्म। जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खैर तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्द आम शहरी ख़वातीन और बच्चों को निशाना बना रहे हैं। दहशतगर्दों का मकरू चेहरा बेनकाब हो चुका। गयूर बलोचों का दहशतगर्दों से कोई ताल्लुक नहीं है। डेप्यूटी स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली ख़ज़ारा गोला, सूबाई वज़ीर राहिला हमीद, मुशीर मीना मजीद बलोच और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वज़ीर मीना बलोच ने कहा कि दहशतगर्द बलोचिस्तान में अमन, तरक्की और तालीम नहीं चाहते। राहिला हमीद का कहना था कि घर में मौजूद 2 ख़वातीन को कत्ल कर दिया गया, किसी का मज़म्मती बयान तक नहीं आया। दहशतगर्द ख़वातीन को शहीद करके अपने मक़ासिद हासिल नहीं कर सकते। दहशतगर्द बलोचिस्तान में अमन, तरक्की और तालीम नहीं चाहते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मस्तूम हमले की मजम्मत। मोहसिन नकवी का वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान से टेलीफोनिक राब्ता, ज़िया लांगो की खैरियत दरियाफ्त की, हमले की मजम्मत की। वफाकी वज़ीर दाखिला ने मस्तूम हमला नाकाम बनाने पर बलूचिस्तान पुलिस की बहादुरी को खराज तहसीन पेश किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि मीर ज़िया लांगो हमले में महफूज रहे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बलूचिस्तान पुलिस की कुर्बानियाँ काबिल तहसीन हैं। अमेरिका का चीन पर बड़े तिजारती धोखे का इल्जाम। व्हाइट हाउस ने दी कुवैत कास्ट शिपमेंट स्कीम नामी 25 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जारी कर दी। अमेरिकी सदर ने रिपोर्ट शेयर कर दी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीनी अशिया भारत, इसराइल, कनाडा, यूरोपीय यूनियन, तुर्की, जापान और मलेशिया समेत 40 से ज़ायद ममालिक के जरिए अमेरिका लाई जाती है ताकि टैरिफ से बचा जा सके। पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। अमेरिका को सालाना 26 अरब डॉलर्स का नुकसान होने का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी बरामद कुनंदेगान अपने सामान को बराह रास्त अमेरिका के बजाय थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भेजते हैं। चीन ने धोखाधड़ी का अमेरिकी इल्जाम मुस्तरद कर दिया। ईरानी फ़ज़ाइया के 3 पायलट्स कतर की कैद में हैं। ईरान का इल्ज़ाम, रेड क्रॉस की बैनुल-अक़वामी कमेटी से सूरत हाल वाज़े करने में मदद की अपील। ईरानी फ़ौज की गुमशुदा अफराद की तलाश से मुताल्लिक़ कमेटी के सरबराह ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद बाकर ज़ादा ने
ICRC की सदर को लिखे खत में कहा कि 2 Su-24 जंगी तैयारे 2 मार्च को कतर में वाक़े दुश्मन के फौजी अड्डे को निशाना बनाने के लिए मिशन पर रवाना हुए थे। कतर की ईरानी पायलट्स को हिरासत में रखने की तरदीद। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, ईरानी पायलट्स ने रवां साल कतरी फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की थी। इमदादी टीमों ने एक पायलट की वाक़यात दरियाफ़्त की थी। PTI 2 कौमी नजरिए को नहीं मानती। KPK में तालीमी इदारे बंद हो चुके, जंगलात काटने वाले वजीर बन चुके हैं। नए पाकिस्तान का कहते कहते मनशियात स्मगलर वजीर बन गए। पेशावर के बड़े बड़े होटल मनशियात स्मगलर्स खरीद चुके हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून इख्तियार वली खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, रियासत मदीना का नारा लगाने वालों के दौर में हज और उम्रा महंगा हुआ। PTI वाले किसी भी मुल्क मुखालिफ तहरीक का हिस्सा बनने में देर नहीं लगाते। PTI दौर में नैब को सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज से ज़िला अटक के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात, अवामी ज़रूरियात और ज़िला अटक के तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा, सुथरा पंजाब प्रोग्राम की तर्ज पर साफ पानी प्रोजेक्ट भी तरजीहात में शामिल है। सफाई सुथराई के बाद अब तमाम शहरों में पीने के साफ पानी को मुहैया करना तरजीह है। कराची में जेकब लाइन से फितनतुल खवारिज का दहशतगर्द शहजाद उर्फ डंगर गिरफ्तार। ताल्लुक फितनतुल खवारिज के मंसूर ग्रुप से है। कब्जे से असलहा और बारूद भी बरामद। तर्जुमान रेंजर से मुताबिक ग्रुह का सरबराह दहशतगर्द मंसूर गनबारी कॉलोनी मंगोपीर में रिहाइश पजीर रहा और कराची ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तारी के खौफ से वजीरिस्तान रुपोश हो गया। दहशतगर्द मंसूर ने गिरफ्तार दहशतगर्द को कराची से तंजीम के लिए फंडिंग करने का टास्क दिया। कराची में दोस्त ने दोस्त का कत्ल कर दिया। गुलशन मेमार में दुकान पर फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल दानियाल अपने वालिद के साथ दुकान पर था। गाड़ी में दोस्त नफीस आया, वालिद के सामने बैठे बेटे को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट्स ने इस्तीफा ट्रंप से दिल बर्दाश्ता होकर दिया। ईरानी सिफारत खाने का दावा। जनूबी अफ्रीका में ईरानी सिफारत खाने ने लेविट्स की नाखुशगवार मूड में तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि धोखा बहुत बुरा होता है। बॉस की जानिब से धोखा देने और खतरे में भेजने के बाद रफाकत से मुतालिक तमाम उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। व्हाइट हाउस ने ईरानी सिफारत खाने के दावे को गलत करार दे दिया। डार्विन टेस्ट में बड़ा अपसेट। बांग्लादेश ने मेजबान ऑस्ट्रेलिया को पहली मर्तबा होम ग्राउंड पर हरा दिया। बंगाल टाइगर्स ने 57 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। शादमान इस्लाम 25 और मोमिनुल हक 30 रन बनाकर नॉट आउट रहे। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 198 और दूसरी इनिंग्स में 284 रन बनाए। बांग्लादेश ने पहली इनिंग्स में 426, दूसरी इनिंग्स में 1 विकेट पर 57 रन बनाए। एशिया कप और एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम के स्क्वाड्स का ऐलान। फातिमा सना दोनों इवेंट्स में पाकिस्तान की क़यादत करेंगी। पाकिस्तान विमेंस टीम का ट्रेनिंग कैंप 16 से 25 अगस्त तक नेशनल क्रिकेट अकेडमी में मुनक्किद होगा। DP वर्ल्ड विमेंस एशिया कप 28 अगस्त से 13 सितंबर तक दुबई में खेला जाएगा। चिन्योट में 80 साल पुरानी FIR की अनोखी सालगिरह। मुकदमे की अदम पेशी और पेशरफ्त पर नवासे ने केक काटकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। 1947 में सईद इस्माइल डाहर के मरहूम नाना ने चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया था। 8 दहाइयां गुजरने के बावजूद ना मुकदमे का रिकॉर्ड सामने आ सका और ना ही चोरी होने वाले सामान का सुराग मिला। कराची में नेटिव JT पुल से कमिश्नर ऑफिस तक रिवायती गधा गाड़ी रेस का इनेकाद। 40 गधा गाड़ियों के दरमियान होने वाली दिलचस्प रेस में कोयल ने सबको पीछे छोड़ दिया। पीतल बख्श के चीमा वाला ने दूसरी और शाहजहां बलोच के लाल बादशाह ने तीसरी पोजीशन हासिल की। रेस में पोजीशन हासिल करने वालों में इनामात भी तकसीम किए गए।
اور ہر دور کے استاد نصرت فتح علی خان کو مداحوں سے بچھڑے 29 برس بیت گئے. قوالی، غزل، کلاسیکل گائکی سمیت ہر طرح کی موسیقی کو بام عروج بخشا. ریکارڈ سے کیسیٹ، MP3 سے یوٹیوب اور ڈیجیٹل پورٹل تک ٹیکنالوجیاں بدلتی رہیں، لیکن استاد نصرت فتح علی خان نے جو گایا وہ کبھی پرانا نہ ہوا. ان کی شہرت نے انہیں گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں جگہ دلوائی.